Now, as we know, descending tracts means they are bringing the information from the center to the periphery. They are nothing but the motor fibers. So far, we have explained all about the sensory fibers. Okay? So, if you go into if you are going to the resuscitation, which is explained in Ayurveda for the newborn, then also they have used the same principles of ascending sensory tracts, ascending tracts. See, first they say Krishna Kapalika Shurpena Tena Abhinushnuyat. Before that they say Ashmano Sangatanam Karanayor Mulo. Then they say Mukha Parisheka. Shitodakena Ushnodakena Mukhe Parisheka. Then Krishna Kapalika Shurpena Tena Abhinushnuyat. Now see, in both the first two conditions, one is the sound sensation or auditory sensation, Ashmano Sangatanam Karanayor Mulo. The second one is touch sensation. Second one is touch sensation. Now, they have used sensory activity for the stimulation of the respiratory center. ठीक है, स्ट्रॉन्ग साउंड स्टिमुलस देने से जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा. रीज़न इज़ वेरी सिंपल. मैंने बताया आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सब कल मैंने समझाया. Every sensation, it may be pain sensation, it may be pressure sensation, vibration, sound sensation, auditory sensation, taste. Every sensation, when it is moving upwards, it also gives a relay branch to the respiratory center. So if you stimulate one particular sensation, indirectly you can also stimulate the respiration. This is a very simple logic. Okay, pure anatomy. Okay. तो इसलिए जब आप साउंड जोर से जब साउंड स्टिमुलेट करते हैं तो सडनली क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट हो जाता है. जो आदमी बेहोश होकर गिर जाते हैं उसके बाद सडनली आप कोल्ड वाटर डाल देते हैं तो वो कोल्ड सेंसेशन की वजह से जब वो कोल्ड सेंसेशन ऊपर कैरी होगा इट ऑल्सो स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन, इसलिए वो आदमी उठ जाता है कोल्ड पानी ठंडा पानी डालने के बाद. सिमिलर इज विद द अदर सेंसेशंस ऑल्सो. समबडी इज अनकॉन्शियस, वी वेरी फोर्सफुली रब इन द टिबियल एरिया. Okay, that's again a pain and pressure sensation. So that leads to the starting of the respiration. Okay, आप देखे होंगे कि जब हम खाते हैं तो भी जो है खाते वक्त थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन बंद हो जाता है फॉर सेकेंड्स, और सडनली हॉट वाटर डाल दिया, कोल्ड वाटर डाला, सडनली एक बार आपका रेस्पिरेशन फॉर फ्यू सेकेंड्स, 1 or 2 seconds बंद हो जाता है. दैट द reason is when you are stimulating any sensation, it also stimulates the respiration. This is the logic behind the Ashmana Sangatanam Karanayor Mule and other, this Ashmana Sangatanam and Mukhe Parisheka explained in the resuscitation concept of Ayurveda. Comorbidity. Okay, that's a different issue. Okay, now we are discussing about descending tracts. This brings the information from the center to periphery. Okay, central nervous system works by collecting the sensory input followed by the motor response. Now, whenever you give so many sensory stimulations, that will be collected by the sensory cortex of the brain and that will be given to the motor cortex, and motor cortex gives the response. Sensory input will be given by ascending sensory tracts as already explained, and this information will be further processed and analyzed and proper decision will be taken and motor response are given and it is carried through the descending tracts. Okay, same thing. Now these motor responses are carried through different nerves supplying to the skeletal muscle. Some of the motor responses which are coming from the brain reaches some of the skeletal muscles. Whenever the movement is desired, any movement is desired, muscle movement is desired, then these neurons, they connect with the muscles are get stimulated and you will have the desired action. And some of the motor responses are coming, they are also going through the autonomic nervous system. Okay, now autonomic system में sympathetic और parasympathetic है, they are also called as visceral motor system. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. मोटर इम्पल्स जो ऊपर से नीचे तक आता है वो स्केलेटल मसल को जो सप्लाई करने वाला नर्व्स के थ्रू आता है, ये एक जितना भी मसल है वो उसके थ्रू आता है, और दूसरा पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू आता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो मोटर फाइबर्स, दे आर कॉल्ड एज विसरल मोटर फाइबर्स. So through the autonomic nerve system tracts which modify the gland function, smooth muscle contraction and heart function. Now heart का जो muscles है
बाकी वेजल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स है, इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल्स है, और ग्लैंड का सेक्रेशन है। ये सेक्रेशन होने के लिए ऊपर से जो मोटर रेस्पॉन्स आता है, ये इसको सेक्रेशन करने, इसको स्टिमुलेट करने के लिए ऊपर से जो मोटर रेस्पॉन्स आता है, सो दैट इज कमिंग थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. For the skeletal muscles, it is coming through the different nerves. Now this is how these tracts are. We will see later. Now this is the motor tracts. So when I say motor tracts, they come to know that motor area is now. Acha, now we should know about some of the concepts here. 1 minute. So now, how to understand the motor centers of the brain, and how to understand the premotor area or precentral gyrus, etc., which is present in the brain, which is the root from where actually the motor responses start. ठीक है, ट्रैक्स जो बहुत है, वाइट मैटर है, वो जो भी मोटर रेस्पॉन्स को लेके नीचे आएगा, बट ये जो मोटर रेस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है वो ग्रे मैटर से होता है, पता है आपको, है ना, कि सेरेब्रम से होगा. तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में देखेंगे. नाउ to understand the concept of motor area in the cortex of the cerebellum, we need to see the superior lateral surface of the cerebral hemisphere. Superior lateral surface of the cerebral hemisphere, superior or lateral, जैसा इस पिक्चर में शायद, if the picture is there, able to show the picture, yes, जैसे है ना superior lateral, ये है superior lateral picture है, ठीक है. This picture is superior lateral picture. You know, superior lateral part of the brain is shown here. Now, to understand the concept of motor area in the cortex, we need to see the superior lateral surface of the cerebral hemisphere. And जब superior lateral surface से आप देखेंगे, there is a big sulcus in the cerebral hemisphere. है ना, superior ऊपर से जब आप देखेंगे, there is a big sulcus in the cerebral hemisphere, and that is called as central sulcus. बीच में से एक sulcus जाता है, ठीक है, that is called as central sulcus. Central sulcus, anterior to the central sulcus, central sulcus का आगे का जो पोर्शन है, anterior पोर्शन है, is the area of the motor activity. Central sulcus का जो पीछे के एरिया है, it's the area of the sensory activity. That means सेंट्रल सल्कस का जो पीछे के एरिया है, दैट एक्ट एज ए सेंसरी कॉर्टेक्स, एंड सेंट्रल सल्कस का जो आगे के एरिया है, दैट विल एक्ट एज ए मोटर कॉर्टेक्स. ओके, सो नाउ एरिया नंबर 1, 3, 2 एक्सेट्रा आर द सेंसरी एरियाज का जो एरिया है वो. नो, ओके, नाउ न्यूरोलॉजिस्ट यूज द मेथड टू अंडरस्टैंड विच इज सेंसरी एंड विच इज मोटर बाय 2 मेथड. अब सबसे पहले जब when they start studying about the brain function, motor area and all, how the neurologist write. Okay, तो वो कैसे पता चल गया है कि ब्रेन का कौन सा एरिया सेंसरी है, कौन सा एरिया मोटर है. सो हाउ दे कम टू नो दैट? फॉर दैट दे फॉलोड 2 methods. One is, first they give the electrical stimulation of to the particular area of the brain, है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो भी है पर्टिकुलर एरिया है, उसको उन लोगों ने इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया. इलेक्ट्रिकली जब स्टिमुलेट किया गया तो उसका रेस्पॉन्स क्या हुआ वो देखे, और उसका आधार पर उन लोगों ने बताया कि ये मोटर एरिया है या ये सेंसरी एरिया है. दैट इज वन मेथड विच इज फॉलोड. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिया. जो भी लैबोरेटरी में जो भी एनिमल्स को जो भी उन्होंने यूज़ किया, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्ट डिमिनिश और डिस्ट्रॉइंग वन पर्टिकुलर एरिया. ब्रेन का एक पोर्शन को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया. डिस्ट्रॉय करते कौन सा फंक्शन लॉस हो गया वो देख लिया उन्होंने, तो उस हिसाब से बताया कि ये पर्टिकुलर सेंटर जो है इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए चाहिए था. जब हमने उसको ख़त्म कर दिया तो ये फंक्शन चला गया. सो दिस इज द सेकेंड वे हाउ दे स्टडीड दिस वेरी कॉम्प्लेक्स एरियाज, कॉम्प्लेक्स मोटर एंड सेंसरी एरियाज ऑफ द cerebral cortex. Okay, the area which is destroyed,
इन द लोअर एनिमल्स में उन लोगों ने शुरू में किया ये सब स्टडी. ओके, नाउ दे कम टू नो दैट मोटर एरिया इज एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस. इस तरीके से स्टडी करने के बाद लेटर दे कम टू नो दैट द मोटर एरिया इन द ब्रेन इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस and sensory area is present posterior to the central sulcus. So central sulcus is one of the very important landmark in the cerebrum. The area अब हो गया ये, अब area just in front of the central sulcus. Central sulcus है, उसका एकदम सामने वाला जो एरिया है that is called as precentral gyrus. Okay, just उसका सामने है that is called as precentral gyrus. And सो बहुत बार आप देखते हैं ना कि प्री सेंट्रल गैरस आता है. वो क्या है? द एरिया विच इज प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सल्कस इन द मोटर एरिया. क्योंकि इस फ्रंट साइड में पूरा सेंट्रल सल्कस का फ्रंट साइड में हमेशा मोटर एरिया रहता है. तो एकदम जो सामने पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज प्री सेंट्रल गैरस. एंड प्री सेंट्रल गैरस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोटर एरिया. और इसमें वापस सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गैरस है. अगेन so there are three parts. जो ऊपर का पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर गैरस, मिडल का पोर्शन है इट इज कॉल्ड एज मिडल गैरस, एंड इंफीरियर का जो पोर्शन है इंटीरियर फ्रंटल गैरस. ये सब है ना, इंफीरियर फ्रंटल गैरस, मिडल फ्रंटल गैरस, सुपीरियर फ्रंटल गैरस, प्री सेंट्रल गैरस, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोटर एरियाज है ना. बहुत सारे छोटे छोटे मोटर एरिया सब इसी में है. ओके, नाउ द एरिया विच इज कॉल्ड एज प्री सेंट्रल गैरस एंड इट्स एक्सटेंशन टू द मीडियल पार्ट is called as primary motor cortex area. Okay, so I have to put a figure here. Figure के साथ ही इसको हम पढ़ सकते हैं. Okay, so if possible you just go through the figure in the internet and try to correlate all these things. Okay, the area which is called as precentral gyrus and its extension, वो medially जो है उसका extension चलता है. वो गैरस है ना, प्रीसेंट्रल गैरस, वो मीडियली एक्सटेंड हो जाता है. हम सुपीरियर लैटरल व्यू से देख रहे हैं, मीडियली ऐसे बेंड होके चला जाता है. सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया. नाउ दिस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ द मोटर फाइबर्स. इन फ्रंट ऑफ दैट देयर इज ए प्री मोटर एरिया and there is one more area nearby which is called as supplementary motor area. Now so far we have seen central sulcus. Central sulcus का सामने प्रीसेंट्रल गैरस है. प्रीसेंट्रल गैरस तीन टाइप है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर है. और उसका एकदम सामने, प्रीसेंट्रल गैरस का एकदम सामने, ठीक है, देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रीसेंट्रल गैरस. प्रीसेंट्रल गैरस जब मीडियली एक्सटेंड हो जाता है, सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया. दिस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. मैक्सिमम जो है आपका फाइबर्स है ना, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का जितना भी फाइबर्स है जो मैक्सिमम है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया से निकलता है. ओके, अबाउट 30% ऑफ द मोटर फाइबर्स, ओके, सो दे कम फ्रॉम प्री मोटर एरिया. 30%, बाकी जो 70% है बाकी एरिया से आएगा. 30% ऑफ द मोटर फाइबर्स, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का जो फाइबर्स है सिर्फ प्री मोटर एरिया से आता है. ओके, rather वो 30% of the fibers are coming from the primary motor cortex area, and in front of that there is another area which is called as premotor area. Primary motor cortex से 30% fibers आता है, उसके एकदम सामने premotor area पड़ा हुआ है, और उसके साइड में एक कोर सेंटर है और एरिया है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. ओके, सो नाउ दे सेज दैट दीज टू टुगेदर, आपका जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री, ये सब मिला के टोटल जो है 30% फाइबर्स यहीं से आता है. ओके, और रेस्ट ऑफ द 40% जो है अलग अलग जगह से आता है. वो बोलते हैं कि सेंसरी कॉर्टेक्स से भी आता है, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स आता है. वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट जस्ट रिमेंबर दिस प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. दीज थ्री टोटली कंस्टिट्यूट्स अबाउट 30% of the total fibers coming from the brain, and all the three are very important motor areas. Now to understand the concept of motor area in the cortex,
we need to see the superior lateral. This part we have covered, yes. This part we have covered. Now come to this part. Now प्रीमोटर एरिया हो गया, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया हो गया, प्रीमोटर एरिया हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री मोटर एरिया हो गया. Now premotor area is one which plans that how should we have to generate the motor response. सेंसरी कॉर्टेक्स से पूरा एनालिसिस करने के बाद, डाटा कलेक्ट करने के बाद, नाउ इट इज़ वी ऑलवेज से मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स होने के बाद मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो है अपना काम करता है. सो वो कहाँ पे काम करता है? प्री मोटर एरिया में होता है. प्री मोटर एरिया इज अ वन विच प्लान्स दैट हाउ ए एक्शन शुड बी प्लान. ठीक है, हाउ एक्शन शुड बी प्लान. सपोज आपको कोई एक टेबल से कॉफ़ी का कप उठाना है, ठीक है, तो इनिशियली जब आप शुरू करेंगे आपका मसल का मूवमेंट कितना होना चाहिए. जब कप आपका पास आ गया या कप के पास आपका हाथ आ गया तो वहाँ पे मूवमेंट कंट्रोल कैसे होगा. ठीक है, कप को छूने के बाद उसको पकड़ने के लिए कौन सा मोटर मूवमेंट, मसल का मूवमेंट होना चाहिए. ये इतना डिटेल में है ना. इसको जो प्लान करता है दैट इज़ अ प्री मोटर एरिया. इट प्लान्स, एग्जीक्यूशन करता है दूसरा और कैरी करता है दूसरा ट्रैक्स, बट प्लान करता है प्री मोटर एरिया. प्री मोटर इज अ प्लानर. Okay, so it should have some update information from the proprioceptive sensory input from the sensory cortex, and as well as cerebellum is required to initiate the action accordingly, isn't it? So एक मोटर प्री मोटर एरिया मोटर प्लान करेगा, एक्शन प्लान करेगा, बट जैसा मैंने बताया कि शुरू में जो है स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, कप का पास आते जो है स्पीड कम होना चाहिए, और कभी जो है आपका जो हाथ कप को ओवरशूट भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, और कप आपका बॉडी का लेवल क्या है और जो कॉफ़ी का जो ग्लास रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, वो कौन सा हाइट में है, इसका एक्यूरेट आइडिया होना चाहिए. ठीक है, कप का साइज़ का आइडिया होना चाहिए पकड़ने के लिए. सो दैट मीन्स सिर्फ एक प्लान करने के लिए, प्लान जैसे कोई भी प्लान करते हैं, कोई कार्यक्रम को हम किस तरीके से प्लान करते हैं, सभी डाटा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है ना. कोई प्रोग्राम करना है तो कौन कौन आ रहा है, कौन कौन कहाँ रुकेंगे, कब आएंगे, कितना देर तक बात करेंगे, वो जाएंगे कैसे, रुकेंगे कहाँ पे, सब प्लान करना पड़ता है. सिमिलरली हियर ऑल्सो टू प्लान सम एक्शन प्री मोटर एरिया हैज़ टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. इट वांट ए रेडीमेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी इनपुट. प्रोप्रियोसेप्टिव्स चाहिए, प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स, टेंडॉन्स, गोल्गी बॉडीज, ये सब. ठीक है, मतलब आपका हाथ का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, है ना, कितना फास्ट जाना है, कब से कितना देर के बाद आपको स्लो करना है. ठीक है, मॉडिफाई कैसे करना है, तो ये सब चाहिए. ठीक है, कफ कहाँ पे रखा है, वो सरफेस कैसा है, ईवन है अनईवन है, तो ये सब चीज़ें, इसका जो है पूरा आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए. ओके, सो नाउ सो इट शुड हैव द अपडेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी इनपुट फ्रॉम द सेंसरी कॉर्टेक्स एज वेल एज सेरेबेलम. सेरेबेलम जो है जो स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड. इसलिए प्री मोटर एरिया कैन नॉट वर्क विदाउट एन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी इनपुट्स और डॉर्सल ट्रैक्ट सिस्टम एंड ऑल्सो बाय मीन्स ऑफ स्पाइनोसेरेबुलर सिस्टम. वो उसको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली आता रहेगा, उसी हिसाब से वो सेट करता रहेगा. ओके, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. अनदर इज सप्लीमेंटरी मोटर एरिया. मैंने बताया कि प्री सेंट्रल एरिया के पास एक और एरिया है जिसका नाम है सप्लीमेंटरी, नॉट कॉम्प्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी मोटर एरिया. व्हाट मीन बाय सप्लीमेंटरी मोटर एरिया? सप्लीमेंटरी मोटर एरिया दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव मोटर एरिया. मतलब लोअर एनिमल्स में भी है ये, हायर एनिमल्स में जो है प्री मोटर एरिया बहुत अच्छा डेवलप्ड है, क्योंकि वो प्लान करता है ना, कि इतना ही प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा लोअर एनिमल्स नहीं कर पाते, बिकॉज उसका प्री मोटर एरिया इतना स्ट्रांग नहीं है. बट ह्यूमन बींग्स में, हायर एनिमल्स में क्या है कि वो स्ट्रांग है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, सो स्पेशलिटीज दिस इज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव एरियाज. जैसा पेन पाथवे में हमने बताया कि प्रिमिटिव है कुछ, है ना, एसेंडिंग ट्रैक्ट्स में प्रिमिटिव है, वैसे यहाँ पे भी जो मोटर एरिया है ये प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव का मतलब सप्लीमेंट्री और प्रिमिटिव का मतलब क्या है?
the most primitive motor movements like hip movements and trunk movement which are usually bilateral. Now see, आप एक राउंड वार्म को देखो, एक रेप्टाइल्स को देखो, तो वो भी जो चलता है ना, तो उसको जब when they are moving, actually the main movement is ट्रंकल मूवमेंट एंड एक्सियल मूवमेंट एंड हिप मूवमेंट जैसा है ना कि उसका, तो वो हिला के चलते हैं. दैट मीन्स तो वहाँ पे भी लोअर एनिमल्स में भी जो है, दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव सेंटर और प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. समझ में आ रहा है ना कि जैसे लो गट ब्रेन एक्सिस जैसा है लोअर एनिमल्स में, वैसे ही जो है ब्रेन में जो है पहले सप्लीमेंट्री मोटर एरिया था जब हम लोअर एनिमल्स थे. ठीक है. सो मैक्सिमम लोअर एनिमल्स यू कैन टेक 4 लेग्ड एनिमल्स भी आप देखो, और रेप्टाइल्स देखो, राउंड वर्म्स ये सब देखो, या आपका अर्थवर्म ये सब देखो, ये कैसे मूवमेंट होता है. इसका मैक्सिमम मूवमेंट जो है हिप मूवमेंट, ट्रंकल मूवमेंट और एक्सियल मूवमेंट इसी से चलता है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. सो व्हेन दीज एरियाज आर स्टिमुलेटेड देयर विल बी मोर ट्रंकल एंड एक्सियल मसल मूवमेंट. जब ये सेंटर स्टिमुलेट होता है तो जब भी हमारा ट्रंकल मूवमेंट, हिप मूवमेंट और एक्सियल मूवमेंट ये होता है. ओके. सो नाउ व्हेन दिस सेंटर इज अफेक्टेड, जब इस सेंटर अफेक्ट होता है तो आपका एक्सियल मूवमेंट, ट्रंकल मूवमेंट अफेक्ट होता है. एक्सियल और ट्रंकल मूवमेंट अफेक्ट होता है. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. एंड मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स लाइक क्लाइंबिंग, रनिंग एक्सेट्रा रिक्वायर द एक्सियल एंड ट्रंकल मसल्स, है ना. प्रिमिटिव एनिमल्स में आप देखो, बंदर या कोई भी और पक्षी है, क्लाइंब करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, ठीक है. सो वहाँ पे सब आपका एक्सियल और ट्रंकल मसल मूवमेंट का जरूरत ज़्यादा है, इसलिए उसको बोला जाता है कि प्रिमिटिव है. वो ह्यूमन बींग्स में भी है. ह्यूमन बींग्स में क्या है, हमारा हिप का मूवमेंट होता है, ट्रंकल मूवमेंट होता है. सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. दिस इज वन ऑफ द प्रिमिटिव और ओल्डेस्ट एरिया. ओके. सो दीज आर द 2 important areas present here. Okay, so this take a long time. So next part of this will continue in the next class. Thank you very much.